Uh, so we will have an opening challenge, and this opening challenge will be spoken to us, will be shared to us by Brother Roland Jaikar. Now, to just give an introduction to Brother Roland, or Rolly as we know him, uh, he is married to Doris for 34 years, and he has two children, both of whom are now married. The entire family walks with God as believers and witnesses to the life of the Lord Jesus, and are part of the church at Thane of the Redeemed community. He is currently working for NRB Barings Limited in international sales. Okay. Roma, can you just translate that, please? या सो हम इतने अच्छे संगति के समय के लिए ब्रदर राजू एंड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके साथ ही आज हम ओपनिंग, आज की जो शुरुआती चुनौती है उसकी ओर बढ़ेंगे, और हम अपने पहले सेशन की ओर चलेंगे, जहां पर हमारे बीच में ब्रदर रोलैंड जैकर है, और उनको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। सो ब्रदर रोलैंड की शादी सिस्टर डॉरिस से हुई है, और वो 34 साल से शादीशुदा है। उनके 2 बच्चे हैं, और दोनों की शादी हो चुकी है, और पूरा परिवार परमेश्वर के साथ एक विश्वासी के रूप में चलता है। और ये थाने कलीसिया के सदस्य हैं, और इस वक्त वो एनआरबी बियरिंग्स लिमिटेड के इंटरनेशनल सेल्स विभाग में कार्य करते हैं। Thanks for the introduction. So let's begin with the word of prayer. Heavenly Father, we want to thank you for this beautiful day that you added to our lives. In spite of all the situations around us, you made it possible for us to meet in this way. And all the efforts that have been put in, bless all the efforts that have been put in, Lord, so that the camp may be a meaningful camp for everyone who attends. And Lord, everyone, whatever hindrances are there, you remove it. Speak to us according to our individual needs, that we may become what you want us to be. Thank you for hearing us. In Jesus' name we ask. Amen. The portion of the scripture that I have taken for this evening is Acts chapter 11, 19 to 27, and chapter 13, 1 to 3. So let us start with the first few verses. और जो परिच्छेद आज हमने चुना है मनन के लिए आज शाम को, वो है प्रेरितों की किताब, उसका 11 अध्याय 19 से 27 और 13 अध्याय 1 से 3। Verse 19. Now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and great number of people believed and turned to the Lord. Can somebody read in Hindi also in verse 19 to 21? प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 से 21। सो जो लोग उस क्लेश से मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फिनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। Let us look at verse 19. Now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed. वचन 19 के बारे में हम देखते हैं कि लिखा है कि जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे।
Okay, where exactly it happened? If you go to Acts chapter 8, verse 1, it says, on that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. और ये कहाँ पे हुआ, ये हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 8:1 में, जहाँ पे लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। Stephen was one of the deacons who were chosen to serve food make arrangements for the food, proper organization for the food for the entire community of believers. और स्तीफनुस ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि विश्वासियों का जो झुंड था उन सभी के लिए वो खाने का इंतजाम करे। But why he was killed and who killed him? परंतु उन्हें क्यों मारा गया और किसने उन्हें मारा? He was killed because of preaching the word of God to the people around among the Jewish community, and the Jews, basically Sanhedrin, was responsible for getting him stoned to death. और वो इसीलिए उन्हें मारा गया क्योंकि उन्होंने उनके इर्द गिर्द जो यहूदी लोग थे, यहूदी समाज के लोग, उनके बीच में उन्होंने शुभ वर्तमान का प्रचार किया और जो सूबेदार वहां का था उसकी वजह से उन्हें मारा गया। Religious leaders and political leaders of that time among the Jews. और जो राजनीतिक तौर पे जो अगवा थे वहां के और आत्मिक रूप से भी जो उन लोगों के अगवा थे यहूदियों के, उनकी वजह से जो है उन्हें मारा गया। Now this is what we are talking about, persecution. और ये हम बात कर रहे हैं उस सताव के बारे में। It says that great persecution broke out, and the church in Jerusalem and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. और जैसे वचन में हम पढ़ते हैं कि बड़ा उपद्रव होने लगा और यहूदिया और सामरिया देश के लोग जो है वो तितर बितर हो गए। Now we are in a time of a great pandemic all over the globe. और हम भी कुछ ऐसी परिस्थिति में पूरे जग में हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये महामारी वो फैल गई है। So which one do you prefer, pandemic or persecution? तो क्या हम किस चीज का हम चुनाव करेंगे, या उपद्रव या सताव का सामना करना पसंद करेंगे कि ये जो पैंडेमिक है उसका सामना करना पसंद करेंगे? But there is no choice for us in this matter. वास्तव में हमारे पास ये चुनाव करने का मौका नहीं है। Whatever comes, we have to face it. और जो भी सामने आएगा उसे हमें सामना करना पड़ेगा। So how to face it is the question. और सवाल ये है कि हम किस तरह से इस परिस्थिति का सामना करें। Let us look at pandemic versus persecution. तो आइए हम देखते हैं कि पैंडेमिक और उसके विपरीत सताव या उपद्रव, इसकी तुलना करते हैं। In both the cases, we see there is fear of death everywhere. और इन दोनों परिस्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डर है और वो डर है मृत्यु का, which can paralyze the church. और उसकी वजह से जो है वो कलीसिया मानो उसे लकवा आ जाता है। If you look at the pandemic, it affects all. और इस महामारी का असर ये है कि ये सर्वव्यापी है। कोई भी धर्म के कोई हम लोग क्यों ना हो, सभी के लिए ये महामारी जो है वो सताव है। But persecution comes to believers in Christ. परंतु जो उपद्रव की जो बात हो रही है वो केवल उन लोगों के लिए है जो मसीह में विश्वास रखते हैं। In pandemic, we have home security. You will be inside the house. At least you have a house to stay in and take security from everything else. और महामारी के बारे में हम सोचेंगे तो हमारे पास अपना घर होता है और हम कम से कम हमारे उस घर के अंदर जो है वो बंद रहते हैं। But what about persecution? परंतु They were scattered throughout Judea and Samaria. They lost their homes. वो लोग जो
लिखा है कि वो तितर बितर हो गए पूरा सामरिया और यहूदिया में, तो इसका मतलब है कि वो उनके घर में भी नहीं रह सके। And then we see that in home, once we started working from home, we have time in hand to control, which we never had when we were working, especially in Bombay. और हम देखते हैं कि जैसे महामारी की वजह से हम घर से काम कर सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था, और विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में जो है हमारे पास कुछ समय जो हम पहले बिताते थे आने जाने में, वो एक्स्ट्रा समय हमारे पास मिला, You are able to give time to your family. और उसमें से कुछ समय जो है वो हम अपने परिवार के लिए दे सकते हैं। Especially Bombay, travel time of about 3 hours to go to work and come back, that is eliminated. और मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे 3 घंटा लगता है काम पे पहुँचने के लिए और वापस आने के लिए वापस 3 घंटा, तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से इसका फ़ायदा हुआ। But under persecution, what happens? परंतु उपद्रव के दौरान क्या होता है? You cannot say, I have time to do this, time to do that. हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये करने के लिए समय है या वो करने के लिए, Anything can happen anytime. और कभी भी कुछ भी हो सकता है। Now, today we see pandemic everywhere. और जैसे आज हम देखते हैं कि ये महामारी सब जगह है, The whole world has come to a standstill. और पूरा जो विश्व है मानो थम सा गया है। But tomorrow, if persecution comes, are परंतु we कल, ready for that? और सवाल ये है कि अगर कल सताव या उपद्रव का सामना हमें करना पड़ता है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? If it has come to the early church, it will come to us in our own country. और अगर ये शुरुआती कलीसिया को इसका सामना करना पड़ा इस सताव का, तो यकीनन ये हमारे देश में भी आएगा। The stage is set for that at the moment. और अभी की परिस्थिति उस सताव या उपद्रव के लिए पूरी तरह से तैयार है। The major thing is that fear of death, that's going to paralyze us when we really face it. और जब भी हम उस सताव या उपद्रव का सामना करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जिस वजह से हम मानो थम से जाएँगे, वो है मृत्यु का डर। So how to overcome that? तो किस प्रकार से उस डर को हम उस पर विजय पाएँगे? Let us just look at Psalm 91, देखते हैं भजन संहिता 91 verse 9. उसका 9 वचन। If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling. Can somebody read it in Hindi? तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, If you say, the Lord is my refuge, and make the Most High your dwelling. अगर हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और उसको हम धाम मान लेते हैं, That means you are saying that wherever you are, Lord is my refuge, and Most High is our dwelling. That means we don't depend upon our home security here anymore. It is God's security now. और अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और उसी को हम अपना धाम मान लेते हैं, तो हमारी सुरक्षा जो है वो हमारा घर नहीं, परंतु हम परमेश्वर को ही हमारी सुरक्षा मानते हैं। So what will happen when you do that? Verse 10 to 13. Can somebody read in Hindi? और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? आगे 10 से 13 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेके के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। No harm will overtake you. No disaster will come near your tent, it says. It does not say your house, it says your tent. कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, और आगे लिखा है कि कोई दुख तेरे
डेरे के निकट ना आएगा। यहाँ पे डेरा मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जो स्थायी रूप से नहीं है, तो अपना घर नहीं परंतु उस डेरे की बात हो रही है। So you should know that we are not permanent in this world, we are temporary. So our house should be like a tent. तो जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये विश्व जो है वो हमारा स्थायी रूप से घर नहीं है, परंतु अस्थायी रूप के लिए हम यहाँ पे हैं। So God is telling us, be prepared when the persecution comes. So you assume that you are in a tent and you are free to move about anywhere where you want to go. तो इसीलिए परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से उस उपद्रव के लिए हमें तैयार होना है, और हम डेरे में इसलिए रहेंगे ताकि हम इर्द गिर्द जो है वो आसपास जो है वो उसके हम घूम सकते हैं। He will command his angels concerning you to guard you in all your ways. वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। So his angels we cannot see, but they are there all the time protecting us. That's why we are still alive and enjoying this camp. और हम इसीलिए अभी तक जीवित है और इस शिविर का हम आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के दूत अगर भले ही हम उन्हें देख ना सके, परंतु उनकी वजह से ये संभव हो पाया है। They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। You will tread on the lion and the cobra. You will trample on the great lion and the serpent. तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। So it shows that how much protection is upon our lives individually when you say, Lord is my refuge, and make him our dwelling. तो अगर हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं और उसी को अपना धाम मानते हैं, तो देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार की सुरक्षा मौजूद है। And what the Lord says for this. और परमेश्वर इस बारे में क्या कहता है? Verse 14, because he loves me, says the Lord. You read it in Hindi. वचन 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Now, this is what the Lord says when we take refuge in him. और जब हम परमेश्वर के शरण में जाते हैं, तो ये परमेश्वर अभिवचन हमें दे रहा है। So our security is not in this world, nor anything else or anybody else. Our security is not even in the vaccine that is going to come now. Our security is in the Lord who protects our life. तो हमारी सुरक्षा जो है वो ना इस संसार में मौजूद है, ना ही उस टीके के ऊपर मौजूद है जिसकी सभी लोग जो है वो राह देख रहे हैं, परंतु हमारी सुरक्षा जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। Because for us as believers, death is not something he is dead or I am dead. We do not say that in the Bible anywhere. और वो इसलिए क्योंकि विश्वासी होने के नाते मृत्यु जो है वो हमारे लिए अंत नहीं है, और यही हम पवित्र शास्त्र से भी हम पढ़ते हैं। Now, if you look at Acts 7:59 about Stephen's death, स्तिफनुस के मृत्यु के बारे में प्रेरितों के काम 7 का 59 में हम पढ़ते हैं। while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Read in Hindi, please. प्रेरितों के काम 7 का 59, और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। Continue.
फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया, और शाऊल उसके वध में सहमत था। So what he says, that it says here that he fell asleep. और यहाँ पे जैसे कहा गया है कि वो सो गया। What a beautiful word to explain death for a believer. और कितनी खूबसूरत रीति से एक विश्वासी के लिए यहाँ पे मृत्यु का वर्णन किया है। Who does not like to sleep? और ऐसा कोई कौन व्यक्ति है जिसे सोना पसंद नहीं है? Everybody would like to sleep. Only और हम people sometimes complain, I don't get sleep. और हम सभी सोना इतना पसंद करते हैं कि हम कई बार जो है वो शिकायत करते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता सोने के लिए। Now, in death, believers fall asleep so that they will wake up somewhere. और विश्वासी जन भी मृत्यु के द्वारा सो जाते हैं ताकि एक दिन वो फिर से जाग जाएंगे। This is given to us by the Lord. ये परमेश्वर से हमें मिला है। One more verse, Psalm 139:16. और एक Read वचन in Hindi, देखेंगे, please. भजन 139 उसका 16। Read in Hindi, please. या तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Now, this tells us something very important. और यहाँ पे एक अहम बात हमें बताई गई है। God saw our unformed bodies when we were still in the womb. और यहाँ पे हमें बताया गया है कि मेरे रचे जाने के पहले से ही परमेश्वर ने मेरे सब अंग जो है वो देख लिए थे। All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. That means how many days we are going to live upon this earth is written in his book before we start this life. और इसके पहले कि हम अपना जीवन शुरू करें, उसके पहले से ही परमेश्वर जानते हैं कि कितने दिन हम यहाँ पे बिताएंगे, जो उनके पुस्तक में लिखा हुआ है। That book is not shown to us. और इस पुस्तक के बारे में जो जिक्र किया है वो हमें दिखाया नहीं गया है। So we need not worry about it. तो हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। Nobody can go before that, nobody can go after that. और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस किताब में जितने दिन बताए गए हैं उसके पहले या उससे ज्यादा जी सके। So this is for everybody. और ये हर एक के लिए है। So live without fear of death when we are living here. तो इसीलिए जब तक हम जीवित हैं, मृत्यु से बिना डरे हम जिए। Because for us, what Paul says in Philippians 1:21, that actually applies to us as well. और To me, to live is Christ and to die is gain. और वो इसलिए क्योंकि पौलुस जिस प्रकार से कहता है वो हमारे लिए भी लागू है। फिलिपियों की किताब उसका 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। Now, how many of us believe this sincerely? सवाल ये है कि हम में से कितने हैं जो इस वचन को ईमानदारी से विश्वास करते हैं। To live is Christ. Is that we can say confidently today? जीवित रहना मेरे लिए मसीह है, क्या हम ये पूरी विश्वास से कह सकते हैं? If it is not, this camp should change that as you proceed further with the other things listed out for you. और अगर हम उस कॉन्फिडेंस, उस विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते, तो ये शिविर हमारे लिए है
ताकि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। Be ready to say this by the end of the camp, for me to live is Christ. और इस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार करना है इस सेशंस के दौरान, कैंप के शिविर के दौरान, कि अंत में हम ये विश्वास और उस कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। And to die is gain. Why it is gain? और उसके दूसरे हिस्से में लिखा है कि मर जाना लाभ है। तो ये लाभ कैसे है? Because eternal life is given to us when we believed in Lord Jesus Christ. और वो इसलिए क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत काल का जीवन ये अभिवचन के तौर पे मिलता है। Because in that eternal life, there is no pandemic, there is no persecution. और उस अनंत काल का जीवन एक ऐसा अनंत काल का जीवन जहाँ पे ना तो सताव, उपद्रव है और ना ही इस प्रकार की महामारी है। So live without fear of death, because to live for us is Christ and to die is gain. तो इसीलिए हमें मृत्यु से बेडर होकर जीना है, क्योंकि हमारे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। And walk out of this camp with this confidence of this verse. और इस विश्वास के साथ हमें इस शिविर के अंत तक पहुंचना है। Now, let's come back to the passage, Acts 11. Now, those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks, also telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and great number of people believed and turned to the Lord. It has already been read in Hindi, but we will hear. There are three places they go to. Phoenicia is current Lebanon. It's about 400 kilometers away from Jerusalem. Cyprus is an island which is still there, which is 400 kilometers again away from Jerusalem. Antioch, it is currently in Turkey, which is called as Antakya in Turkey, 730 kilometers. There is a mention of Cyrene over there, which is Libya of today. It's about 1200 kilometers away from Jerusalem. So this is just to show that these places are real and these places have so much of distance from Jerusalem. That means when they got scattered, they went to these places so far away those days. और यहाँ पे जैसे 19 वचन में हमने पढ़ा कि वो तितर बितर होकर जो है वो 3 जगह का यहाँ पे जिक्र किया है, फिनिकी, कुप्रुस और अंताकिया। और ये तीनों जो जगह हैं, फिनिकी और कुप्रुस यरूशलेम से लगभग 400 किलोमीटर दूर पे है और अंताकिया जो है वो लगभग 750 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये तीनों जगह जो है वो आज भी हम जो है वो उन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितना तितर बितर यानी कितनी हद तक जो है वो यहाँ वहां फैल गए। Scattered away from the security of their homes. और ये जो है वो उनकी घर से इतना दूर उन्हें जाना पड़ा। Are you prepared for this if the persecution comes? Let go of your house and go about 400 to 700 kilometers away from your house and start a new over there without warning. और सवाल ये है कि क्या अगर हमें सताव का सामना करना पड़ता है विश्वासी होने के नाते, तो क्या हम तैयार हैं हमारे घर से इतनी ज्यादा दूरी पे 450 या 750 किलोमीटर तक जाकर वहां पे फिर से अपना जीवन शुरू करें। Mentally, we should be ready for such things to happen. और मानसिक रूप से हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति हम पर बीत सकती है। Let us look at what these people did. और आइए देखते हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार से उस परिस्थिति का सामना किया। Those who have been scattered by the persecution, they went to these three places, spreading the word only among Jews, it says.
और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सारे लोग जो तितर बितर होकर इतना दूर अपने घर से जा चुके थे, उन्होंने यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया। So their focus they did not lose the focus, though they lost their houses. और भले ही उन्होंने अपना घर खो दिया, लेकिन उन्होंने अपना जो उद्देश्य जो है उसे नहीं खोया। So they spread the word only among Jews. और उन्होंने सुसमाचार जो है वो यहूदियों के बीच में ही केवल सुसमाचार सुनाया। And 20 says, some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. और वचन 20 में जैसे हम पढ़ते हैं कि उनमें से कुछ लोग जो है वो अंताकिया में भी गए और वहां पे उन्होंने यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। So there are two different things mentioned here: spreading the word among Jews and telling them the good news about Lord Jesus to the Greeks. और यहाँ पे दो अलग-अलग बातें हमें बताई गई है। एक तो यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, और दूसरी बात यूनानियों के बीच में जाकर यीशु का सुसमाचार बताना। Why this difference? ये अलग-अलग क्यों है? Jews had the word of God with them. Sorry, uncle? Jewish people had the word of God with them of the Old Testament. Word of God was there with them. यहूदियों के पास जो है वो पुराना नियम जो है उनके पास मौजूद था। And then they were all waiting for the Messiah. और वो सब राह देख रहे थे मसीहा की। So what these people used is they used the word of God to tell them that Jesus is the Messiah. और फिर इन लोगों ने वहां पे जाके यहूदियों के बीच में क्या किया कि उन्होंने परमेश्वर का वचन का ही इस्तेमाल किया बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक मसीहा के तौर पे। But what about Greeks? परंतु यूनानियों के बारे में क्या? Greeks were not the people who knew the word of God. They were idol worshippers. They had so many gods and goddesses, and we know about, there is no time to go through all that, but for them, they're like people who do not know the word of God at all. और यूनानियों के बारे में हम पढ़ते हैं, समय के अनुसार विभाव से हम नहीं पढ़ पाएंगे वचन, लेकिन हम जानते हैं कि यूनानी एक ऐसे लोग थे जो उन्हें परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी पता नहीं था, और वो मूर्ति पूजा और उनके पास कई सारे दैवत थे जिनकी वो पूजा करते थे। So they spoke to Greeks first. और इसीलिए इन लोगों ने जाकर यूनानियों से पहले बात की। They developed relationship with them. उन्होंने उनसे रिश्ता प्रस्तावित किया शुरुआत में। And then telling them the good news about the Lord Jesus. और फिर जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें बताया। How do we share gospel with the unbelievers today? और सवाल यह है कि हम अविश्वासी लोगों के साथ सुसमाचार किस प्रकार से बांटते हैं? We have to use the same principle. और इसी पद्धति का, इसी रीत का हमें भी इस्तेमाल करना है। Those who have the Bible but they don't know Christ, for them you have to open the word of God and teach from the word of God, or preach from the word of God. उन लोगों के लिए जिनके पास पवित्र शास्त्र मौजूद है, उन्हें जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हमें वचन के द्वारा उन्हें सुसमाचार बताना है, उसका खुलासा करना है। But for others you should share it like a good news. परंतु बाकी लोगों के लिए हमें एक सुसमाचार के तौर पे इसे बताना है। Now good news everybody would like to hear. और गुड न्यूज यानी अच्छी खबर, सुसमाचार जो है वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सुने। So you should make it like a good news. We cannot show from the word of God somebody who does not know the word of God, somebody who does not believe in the word of God. So you should make it as a good news to those people and share the word. This is what they did. तो इसीलिए उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें वचन बिल्कुल भी पता नहीं है, उन्हें
वचन से बताने की बावजूद अलावा हमें जो है वो एक अच्छी खबर के प्रकार से उन्हें बताना है, समझाना है कि क्या सुसमाचार है। So the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. और आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। See the work, how it is taking place here. Persecution took place, people got scattered. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुसमाचार फैल गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपद्रव या सताव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो ये लोग जो है वो तितर-बितर हो गए। God allowed that persecution to come. और ये जो सताव या उपद्रव हुआ वो परमेश्वर की अनुमति के द्वारा हुआ। The scattered people did not keep quiet. They did not lose focus. They went and shared the word, and then they gave the good news about the Lord Jesus Christ to people around. और वो लोग जो तितर-बितर हो गए थे, उन्होंने अपना घर ज़रूर खोया, लेकिन उन्होंने अपना उद्देश्य बिल्कुल नहीं खोया। जहाँ पे भी वो गए, उन्होंने आस-पास के लोगों के बीच में जो है वो सुसमाचार सुनाया। What are we required to do? तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? We have to just do these things, what they did. हमें भी इन्हीं लोगों की तरह ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की, वही करने की ज़रूरत है। Not get bogged down by the persecution nor of pandemic. ना ही हमें सताव या उपद्रव के द्वारा घबराना है, ना ही इस महामारी से हमें चिंतित होना है। Because fear of death is not there anymore. Because for me to live is Christ and to die is gain. और वो इसीलिए है क्योंकि मुझे मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। So when you speak the word, share the good news with the people, the Lord's hand will be with us. और इस प्रकार से जब हम बात करेंगे लोगों के द्वारा हमारे आसपास के और उन्हें वचन सुसमाचार सुनाने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर का हाथ हम पर होगा। Just imagine, it is God's hand, it is not our hand. और कल्पना कीजिए कि ये किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, परंतु खुद परमेश्वर का हाथ हम पर होगा। And then people come to believe is not because of you and me telling the good news, it is because of the Lord's hand with us. और वो लोग जो परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, वो ना कि हमारे बोलने से या फिर हम जो सुसमाचार सुनाते हैं उसकी वजह से, परंतु परमेश्वर का जो हाथ हमारे ऊपर होता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। It says great number of people believed and turned to the Lord. और यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो विश्वास किया उन्होंने और परमेश्वर की ओर मुड़े। Maybe we are discouraged oftentimes. I shared many times, but nothing happens. Nobody comes to know the Lord through me. और कई बार जो है वो हम वचन सुनाते हैं और फिर हमें निराशा होती है क्योंकि हम उसका फल नहीं देख पाते हैं, उस व्यक्ति के बीच जीवन में वो परिवर्तन नहीं देख पाते। So you do not have to worry about it. That's not your job. परंतु हमें उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा काम है ही नहीं। That is Lord's hand. वो परमेश्वर का हाथ है। And it says great number. How और great is great number? Numbers are not important. Otherwise, they would have given the number here. और बहुत सारे लोग ऐसे लिखा है, लेकिन कितनी संख्या, कितने लोग थे वो लिखा नहीं क्योंकि संख्या मायने नहीं रखती। Luke 15:10, if you see, in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. और लूका का 15:10 में हम पढ़ते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। Just imagine you share and one person comes to know Christ through you and be saved. One person repents. There is rejoicing in the presence of the angels of God. So that means there is celebration taking place in heaven over one person who has come to know the Lord in and through you. और यहाँ पे कल्पना हम कर सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति भी, अगर एक भी व्यक्ति मन फिराता है और उसका
उद्धार होता है जो हम सुसमाचार सुनाते हैं उसके द्वारा, तो भी स्वर्ग में जो है वो स्वर्गदूत और परमेश्वर के सामने जो है वो आनंद और बहुत ज्यादा खुशी मनाते So हैं। 1 is a great number. तो केवल एक भी अगर है तो भी यहाँ पे उसे बताया गया है कि ये महत्वपूर्ण है, Because there is great celebration taking place up there in the presence of angels. और इसीलिए एक मनफिराव के बाद भी जो है वो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आनंद करते हैं। So pandemic or persecution, both are opportunity for God's people. तो इसीलिए सताव हो या फिर महामारी हो, दोनों हम परमेश्वर के लोगों के लिए एक मौका तैयार करते हैं। If you have been discouraged during pandemic and you अगर have हम stopped sharing Christ with people in your life, अगर हम इस महामारी से जो है वो निराश है और हम लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को बांटना हमने बंद किया है, this camp should change it. इस शिविर के द्वारा वो बदलाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। Verse 22. News of this reached the church of Jerusalem and they sent Barnabas to Antioch. Can you read it in Hindi, please, up to verse 24? आगे मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 11:22 से 24। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। So news of this reached the church in Jerusalem and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw what the grace of God has done, and he has encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord after he went as well. So that means the God continued to work. Even Barnabas was sent. Now, church and Jerusalem sent Barnabas to Antioch to look at the work that has been done. यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये चर्चा यरूशलेम की कलीसिया को पता चली तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा ताकि वो देख सके कि परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्य किया है। Who is Barnabas? ये बरनबास कौन है? He is a second generation leader. और ये दूसरी पीढ़ी का अगुवा है। So the first generation handed over to the second generation. और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पीढ़ी खत्म होकर उसने दूसरी पीढ़ी को जो है वो जिम्मेदारी सौंप दी। And Barnabas, as a second generation leader, he had grown so much that they could trust him to send alone to see this place and take actions, next actions. और बरनबास हम देखते हैं कि जो कि कलीसिया ने उसके ऊपर ये जिम्मेदारी देने लायक उसे समझा कि वो अकेला जो है वो अन्ताकिया में जाकर परमेश्वर के कार्य के बारे में देख सकता है और आगे उसे बढ़ा सकता है। तो इतनी ज्यादा जिम्मेदारी देने लायक जो है वो बन चुका था। What about our second generation leaders? और सवाल ये है कि हमारे दूसरे पीढ़ी के अगुवाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? Are we all ready to take the responsibility from the first generation? क्या हम सब तैयार हैं हमारे पहले पीढ़ी के अगुवा हैं उनसे जिम्मेदारी जो है वो लेने के लिए? Barnabas, without any word, he accepted the challenge that was given to him and he goes to Antioch. और बरनबास जो है वो जो भी जिम्मेदारी उसे सौंप दी जा रही थी कलीसिया के तो द्वारा बिना किसी बात के उन्होंने ये स्वीकार किया और वो अन्ताकिया चले गए। Are you all willing to accept this challenge as second generation leaders? Without any support from anybody, you will be able to go and do the work that is entrusted to you. और सवाल ये है कि क्या हम भी दूसरे पीढ़ी के अगुवा होने के नाते जो काम हमें सौंप दिया जा रहा है पहले पीढ़ी से बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी
बात के क्या हम भी इसे स्वीकार करते हैं और जो काम हमें बताया जा रहा है उसे हम पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं? Second generation leaders should be prepared well for taking over now in our churches. और ये समय है हमारी कलीसिया के बीच में कि दूसरी पीढ़ी के जो अगुवा है उन्हें जो है वो जिम्मेदारी पहले पीढ़ी से लेनी चाहिए। So what did Barnabas tell them? Remain true to the Lord with all your hearts. और बरनबास ने उन्हें क्या बताया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। Basically, he is giving a discipleship training to them, how to be a disciple, because they all came from idol worshipping background. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वास्तविक रूप से बरनबास जो है वो उन्हें चेले बनाने का प्रशिक्षण दे रहे थे, क्योंकि ये जो है अंताकिया के लोग जो है वो मूर्ति पूजा का उनका जो पार्श्वभूमि है वहां से वो आए थे। So he tells them, true to the Lord with all your hearts. That's all he told them to do. तो केवल एक ही बात वो बताते हैं कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। So our church has a big responsibility. तो इस प्रकार से हमारी कलीसिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है To achieve in this camp. जो इस शिविर के द्वारा हमें जिम्मेदारी वो निभानी है। Majority of them may be believers in the camp today. और आज प्रशिक्षण में जो लोग जुड़े हैं उनमें से अधिकतम लोग जो है वो विश्वासी होंगे। Those who are not should leave the camp becoming believers. That is our prayer. और हमारी यही प्रार्थना है कि वे लोग जो अभी जुड़े हैं लेकिन विश्वासी नहीं कह सकते, वो भी विश्वासी बनकर ही यहाँ से निकल जाएं। And those who are already believers are the disciples of Lord Jesus Christ. Can we say that confidently? I am a disciple of Lord Jesus Christ. और वो लोग जो जुड़े हैं और विश्वासी हैं, क्या हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के चेले हैं? क्या हम उस विश्वास से उनके बारे में कह सकते हैं? And then how to make them leaders for the future? और फिर चेला बनाना भी, उन्हें विश्वासियों से चेला बनाना है और आगे किस प्रकार से भविष्य में वो अगुवा बनने के लायक उन्हें बनाना है। So our aim should be directed towards this, that all the believers should become disciples and disciples into leaders. तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य रहेगा कि सभी विश्वासी जो है वो चेले बनेंगे और चेले बनने के बाद जो है वो अगुवा बनेंगे। So people normally, even youngsters, they are willing to take leadership in the professional world, but when it comes to church, probably they hesitate. और जैसे हम देखते हैं कि बाहरी दुनिया में जो जवान लोग हैं वो बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और उन्हें पसंद है कि वो जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहां पे ऊंचे पद पर पहुंच जाए। But लेकिन if you, sorry, finish. लेकिन जब बात होती है आत्मिक रूप से कलीसिया के बारे में, शायद उतना जोश या उतनी जिम्मेदारी लेने की कोशिश हम नहीं करते। So it is by experience we are saying, if you give your life to Christ and serve him in the spiritual area, in the church life, you will be a far better leader in the secular world, in the workplace, etc. और ये अनुभव से भाई बता रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए कलीसिया के द्वारा अगर हम अपने जीवन से कार्य करते हैं और उसमें हम हाथ बटोते हैं और वहां पे अगवा बनने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पे भी हम काम करते हैं या फिर बाहरी दुनिया में हम एक अच्छा अगवा बनते हैं। Bible says, seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. और वचन भी हमें बताता है कि किस प्रकार से अगर हम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज सबसे पहले करेंगे तो इस संसार की या बाकी सारी चीजें भी हमें अपने आप मिलेगी। Often we are struggling. What God said, I will simply add to you when you seek the kingdom of God first. और हमेशा हम यही संघर्ष करते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा है कि ये सारी चीजें मुझे मिलेगी अगर मैं परमेश्वर को खोजता हूँ।
So do not struggle for something what God will give free to you, but focus on your life in the kingdom of God. तो इसीलिए हमें जो है ध्यान हमारा इस पर नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर इस बदले में मुझे क्या देगा, परंतु हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य के ऊपर होना चाहिए। Verse 25. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great number of people. The disciples were called Christians first at Antioch. वचन 25 और 26, तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। So what do we see here? Barnabas looked at the whole group of people who came to know the Lord. Then he went to Tarsus to look for Saul. और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि बरनबास जो है उन्होंने उस झुंड को देखा जो विश्वासी थे, और फिर वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। Saul was another second generation believer. और शाऊल भी जो है वो अगवा थे दूसरे पीढ़ी के। He started his life by killing Christians. उन्होंने अपना जीवन जो है वो शुरुआत जो की शुरुआती तौर पे उन्होंने मसीही लोगों को जो है वो मार कर उनकी शुरुआत हुई। And the Lord changed him by meeting him on the way to Damascus. फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से दमास्कस को जब वो जा रहे थे तो प्रभु परमेश्वर उनसे खुद मिले और उस प्रकार से उनका परिवर्तन हुआ। After he became a believer, then he wanted to come back and he wanted to join the group of believers in Jerusalem who were scared to take him. और फिर हम देखते हैं कि विश्वासी या परिवर्तन होने के बाद उनकी इच्छा थी कि वापस यरूशलेम में विश्वासियों के साथ मिलकर काम करें, परंतु वो लोग उन्हें वापस स्वीकार करने में डर रहे थे क्योंकि उनका पिछला जो अनुभव रहा था उनके साथ। When everybody was not willing to take him, Barnabas took him and brought him to the apostles. If you read in verse 27 over there, और what I have written, not in this, it's a different chapter. But Barnabas took him and brought him to apostles. Now Barnabas had a good relationship with Saul from the beginning. He was the one who took him and brought him to the apostles, told him to accept him. और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो बरनबास है वो व्यक्ति जिन्होंने शाऊल से वो मिले और उन्हें जो है वो वापस वो ले आए विश्वासियों के बीच में, क्योंकि बरनबास का जो रिश्ता शाऊल के साथ अच्छा था। Here was Saul, who is a self-driven leader, but he was to be sent to Tarsus, where nothing is mentioned about what he was doing in Tarsus. और यहाँ पे हम देखते हैं कि शाऊल के बारे में जो है कि वो एक ऐसे अगवा थे जो खुद ही अपने आप को प्रोत्साहित करते थे और जोश से काम करते थे, और परंतु आगे हम कुछ पढ़ते नहीं है कि किस प्रकार से उन्हें तरसुस में उन्होंने क्या किया। So a leader who is hidden, Barnabas goes and brings him out to use him in a new church that is going to be formed. और एक ऐसा अगवा जो हम पढ़ते हैं कि शाऊल ने उसे जो है वो तरसुस को ले आए और जहाँ पे एक नया काम, एक नई कलीसिया स्थापन करने का काम विश्वासियों के बीच में जो है वो उन्हें सौंप दिया गया। And it says both of them met with the church and taught great number of people. और आगे हम पढ़ते हैं कि दोनों जो है वो कलीसिया के साथ मिलते रहे और उपदेश देते रहे For 1 full year. 1 वर्ष तक। It's very important teaching the new believers who are becoming part of our church. वो विश्वासी लोग जो नए विश्वास में आए हैं और कलीसिया का हिस्सा है, अहम बात ये है कि उन लोगों को जो है वो वचन से सिखाया जाए। In the mainline churches where I come from originally, और जैसे भाई बता रहे हैं कि जो मुख्य कलीसिया है, where I find that
Many people commit their life to Christ in the retreats that they have, but no growth because there is no teaching in the church. और वहां पे भी इस प्रकार के शिविर होते हैं और कई सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे ऊपर विश्वास करते हैं और उनका जीवन जो है वो सौंप देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें सही रीति से सिखाया नहीं जाता। So we have to make them disciples and then also leaders. So there has to be a lot of teaching that has to go into each one, and that has to be achieved throughout the year and in this camp. तो इसीलिए जो कि हमें हमारा ध्येय है कि विश्वासी बनाए, फिर चेले बनाए और उनके उसके बाद अगुवा भी बनाए, तो जरूरी है कि हर एक स्थिति में जो है वो हमें उनसे सिखाते रहना है और ये जो है वो क्रिया जो है वो चलती जानी है। Identify and give opportunity to according to the gifts of the people, according to the gifts of each disciple, we should give opportunity for the people. One is the identification, then giving और opportunities. That's what Barnabas did. और दो काम करने हैं, जो भी चेले हैं उनके अंदर क्या खासियत है, क्या ऐसे गुण हैं जो विशेष है उनमें, वो हमें पहचानने हैं और उसके अनुसार जो है वो उन्हें मौका देना है ताकि वो जो उनका जो हुनर है वो और ज्यादा विकसित हो और परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो, और यही बात बरनबास ने भी की। Then in verse 27, during this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch. और आगे वचन 27 में लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। And then Agabus, there was a prophet, he stood up and through the Spirit, he predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened in the history when the Claudius was reigning. The disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. This they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. और आगे हम देखते हैं 28 से 30 में, उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल क्लौदियस में के समय में पड़ेगा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। God wants to see the church to meet the needs of the church. और परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया जो है वो एक दूसरे की जरूरतें जो कलीसिया का हिस्सा है उन जरूरतों के बारे में सोचे। That's why God reveals the need to the people of the church. और इसीलिए परमेश्वर जो है वो कलीसिया के लोगों के सामने ही बाकी लोगों की जरूरतें जो है वो प्रकट करते हैं। So this church started with the teaching of Saul and Barnabas, already had become mature enough that the disciples, as each one was able, decided to provide help. और हम देखते हैं कि ये कलीसिया जो नई थी और उपदेश जो बरनबास और शाऊल के द्वारा जो है वो इस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षण मिला था कि समय के अनुसार वो इतनी परिपक्व बनी थी कि अपनी अपनी पूंजी के अनुसार जो है वो इस परिस्थिति में उन्होंने योगदान दिया। This is for whom? For brothers and sisters living in Judea, so whom they have not met and seen so far. और ये किसके लिए? उन भाई, विश्वासी भाई और बहनों के लिए जो यहूदिया में रहने वाले थे और इन लोगों ने उनसे कभी मिले नहीं थे। This is another beautiful thing about believers across the globe. और ये एक अच्छी बात है विश्वासियों के बीच में पूरे विश्व में। We are brothers and sisters, is a global family. और ये जो है वो संसार में हम चाहे कहीं भी रहे, लेकिन हम एक दूसरे से भाई और बहन हैं। So we have our brothers and sisters globally everywhere when we are believers in Christ. तो इस प्रकार से अगर हम विश्वास रखते हैं, मसीह में विश्वासी हैं, तो पूरे विश्व में जो है वो हमारे भाई और बहन हैं। Sensitive to provide for the needs of brothers and sisters.
So giving is something which is according to God, what God tells them to give. So that is something which needs to be taught to the people in the church, and church should be able to help one another. और एक दूसरे के जरूरतें के बारे में संवेदनशील रहना और उसके अनुसार जो है वो एक दूसरे की जरूरतों के बारे में मदद करना, ये सीख जो है वो कलीसिया को देनी जरूरी है। That is why God reveals the need so that the church will provide for the need. और इसीलिए परमेश्वर जरूरत जो है वो प्रकट करता है ताकि कलीसिया के लोग मिलकर उसे पूरी करें। Now coming to Acts chapter 13, the last portion. आगे अंत में प्रेरितों के काम 13 अध्याय। Now in the church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simon, you can read it in Hindi right up to verse 3. 1 से 3 वचन। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे था, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि तेरे निमित्त शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास पर प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। So what's happening here now? यहाँ पे किस बात का जिक्र किया है? Next generation leaders got ready. अगली पीढ़ी के जो अगुवा हैं किस प्रकार से तैयार हुए, उस बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। Because of the teachings that they got. और ये तभी संभव हुआ क्योंकि उस प्रकार की सीख उन्हें मिली थी। So next generation leaders should be ready to take the charge when God calls your leaders away. और इसीलिए हमें अगली पीढ़ी के अगुवाओं को जरूरत है तैयार होने की, क्योंकि जो पहले पीढ़ी के अगुवा हैं, जब परमेश्वर उन्हें बुलाए हैं, ताकि वो परमेश्वर उन्हें बुला सकते हैं। Be ready to say yes to Lord's call. और इसीलिए तैयार रहने की जरूरत है हाँ बोलने के लिए जब भी परमेश्वर का बुलावा आएगा। So it's important for leaders to identify and prepare next line of leadership. तो इसलिए अगवा होने के नाते अहम बात यह है कि हम दूसरी पीढ़ी के जो लोग हैं, जो अगवा बनने लायक है, बन सकते हैं, काबिलियत रखते हैं, उन्हें पहचाने और उस प्रकार से उन्हें सिखाएं। One of the important things that this passage brings out is there is no hierarchy in leadership. और एक अहम बात इस परिच्छेद से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे कोई स्थान नहीं है या फिर ऊपर नीचे ऐसा कोई पद नहीं है। When we know that it is Barnabas and Saul who came and became the leaders and then taught them. और जबकि हम देखते हैं कि बरनबास और शाऊल जो है वो अगवा के तौर पे वहां पे आए और उस झुंड को उन्होंने सिखाया। When the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them," after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. That means there is no hierarchy at all. The leadership of the church, the second generation leaders, put their hands upon Saul and Barnabas and sent them away after praying. और जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से शाऊल और बरनबास को अलग करने बोला, और ताकि उन्होंने उनके लिए अलग काम रखा था। तो फिर उपवास और प्रार्थना कर बाकी लोग जो दूसरे पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने ये पहले पीढ़ी के जो अगुवा थे बरनबास और शाऊल, उन पर हाथ रखा और प्रार्थना कर उन्हें विदा किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के लोगों अगुवाओं ने जो है वो पहली पीढ़ी के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। All are equal, all submit to one another. और सभी जो है वो एक समान है, सभी एक दूसरे के अधीन हैं। So this is what we see, and Paul did 3 missionary journeys from Antioch. और यही हम देखते हैं, और पौलुस के जीवन से भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंताकिया में उन्होंने 3 जो है वो सेवा कार्य के लिए उन्होंने वहां पे प्रयास किया। Now, how it started and where it ended, how it grew into a matured church in this place. The same way God wants to see it happening in our churches. और किस प्रकार से हम देखते हैं कि शुरुआत किस प्रकार से हुई और अंत किस प्रकार से एक परिपक्व कलीसिया के रूप में हुआ, यही बात जो है वो परमेश्वर भी हमारी कलीसिया के द्वारा चाहते हैं।
So churches to develop each family into church planting families, wherever God calls. So our responsibility is to convert each family into a church planting family, wherever God calls them to live afterwards when they leave the place. तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और उद्देश्य यही है कि हर एक परिवार को हमें इस प्रकार से प्रशिक्षण देना है कि जब भी परमेश्वर उन्हें बुलाए तो जहाँ पे भी वो जाएंगे वहां पे वो कलीसिया स्थापित कर सकते हैं। Let this camp bring about that in the coming days. और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रशिक्षण के द्वारा हम अपने परिवारों को इस योग्य बनाएं। Just a summary in closing. सारांश में हम देखेंगे अंत में, Pandemic today, persecution tomorrow, always be ready. आज के दिन में महामारी है और कल सताव या उपद्रव आने वाला है, तो हमेशा तैयार रहो। Live without fear of death. मृत्यु से बेडर होकर जियो। Pandemic or persecution, all are God-given opportunities for us. Look at everything as God-given opportunities. महामारी हो या फिर सताव हो, हर एक परिस्थिति परमेश्वर से दी गई परमेश्वर से दिया गया एक मौका है। Equipping the next generation, believers, make them disciples, make them leaders. अगली पीढ़ी को जो है वो हमें तैयार करना है, विश्वासी बनाना है, फिर चेले बनाना है और अंत में अगुवा बनना है। Identify and give opportunity to develop the gifts of each disciple. हर एक चेले को जो है वो उसके जो हुनर है उसे विकसित करने के लिए उस हुनर को पहचानना है और उस हुनर के अनुसार जिम्मेदारी और अधिकाधिक जिम्मेदारी भी देनी है। Because when all use their gifts, church is edified. और वो इसीलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति कलीसिया का जब अपना अपना जो वरदान या फिर हुनर है उसे इस्तेमाल करता है तो पूरी कलीसिया मिलकर जो है वो विकसित होती है। Sensitive to provide for the needs of brothers and sisters. विश्वासी बहन और भाइयों की जरूरतों के प्रति जो है वो संवेदनशील बने और उसके अनुसार मदद करे। Churches to develop each family into church planting family wherever God calls. और कलीसिया के हर एक परिवार को इस योग्य बनाना है कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर उन्हें बुलाए और ले जाए वहां पे वो कलीसिया स्थापित कर सके। May this camp be a blessing to all in this direction. और प्रार्थना यही है कि इस प्रशिक्षण शिविर के द्वारा हर एक व्यक्ति को इस दिशा में जो है वह परमेश्वर विकसित करे। And each one who is attending this camp may be ready for a change in your life so that God will use you mightily in the days to come. और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है और इसे जो है वो अटेंड करेगा, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखे कि हम अपने आप को जिस प्रकार से परमेश्वर हमें बताते हैं अपने आप को बदलाव करेंगे ताकि हम इस दिशा में और विकसित हों। Request you to close in Hindi in prayer. आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। फिर एक बार वो साल का वो दिन आया है जहाँ पे हम एक कलीसिया के तौर पे मिलकर परमेश्वर आप इस प्रशिक्षण में शामिल हो पाए। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं, परंतु ये आपकी योजना है हम सभी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे जुड़ा है। आपने हमें चुना है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जिस दिशा में परमेश्वर हमें बढ़ना है, जो शुरुआत में आपने हमें बताया है और पहली कलीसिया के उदाहरण से जो हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें विश्वासी बनना है, फिर चेला बनना है और अगुवा बनना है, और उस प्रकार से परमेश्वर हम अपने आप को विकसित करने के लिए तैयार हैं। पूरे हृदय से, पूरे मन से हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई करें और हमारे जीवन में जो बदलाव की जरूरत है वो आप हमें लाने में इस शिविर के द्वारा सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन। Amen.